نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر نور کی طرف لا کے جمع کیا ہے نا بہنوں۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرتے ہیں اتنا کم ہے، یعنی کہ اگر ہم سجدے میں بھی پڑے رہیں گے نا بہنوں تو بھی کم ہے، کیونکہ ہم کو جو آیتیں چل رہی ہے شیطان کے بارے میں ہے نا، اور کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا، تو اب مجھے اور تمہیں ہماری زندگیوں میں جھانکنا ہے بہنوں کہ ہمارے زندگی کیسی ہے۔ کیا میری زندگی شیطان جیسی ہے؟ کیا میری زندگی جیسے ہونی چاہیے، جیسے آدم علیہ السلام تھے ویسی ہے نا؟ تو مجھے اور تمہیں اس بات پر کیا کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ غلطیاں دونوں سے ہوئی تھی ہے نا، مگر فرق کیا تھا کہ ابلیس نے کیا کیا، اپنی غلطی کو ہی نہیں مان رہا تھا، اس نے بولا کہ میں بہتر ہوں۔ اس نے کیا کیا بہنوں، ایگو پرابلم، تکبر کیا، اور اس نے کیا کیا، نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، قیاس کیا کہ میں آگ کا ہوں وہ مٹی کا ہے، اور اللہ کے اوپر اس نے بہتان لگا دیا، جسٹیفیکیشن دیا، جسٹیفائی کیا، صحیح ہونے کی دلیلیں پیش کیا۔ تو یہ سب باتیں جو ہم لوگ روز پڑھ رہے ہیں نا بہنوں، یہ جیسے قصہ کہانی جیسا نہیں ہونا چاہیے بہنوں۔ یہاں پہ جو میں اور تم بیٹھے ہیں، مجھے اور تمہیں یہاں پہ روزانہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ باتیں میرے اندر ہے، اور اگر ہے تو مجھے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ میرے اندر کیا آ جائے، عاجزی آ جائے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً اس کو کیا کر دیا، ایڈمٹ کر دیا، اعتراف کر دیا۔ انہوں نے کہا، کنفیس کر لیا کہ ہاں اللہ میرے سے غلطی ہوئی، اور وہ کیا کیے تھے، توبہ اللہ کیے تھے ہے نا۔ سوری مانگنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے بہنوں ہے نا، ہمارے سے بھی بہت مشکل ہوتا ہے، پر انشاءاللہ ہم اس بات کی فکر کریں گے کہ ہم بھی کیا کریں گے بہنوں، فوراً اگر ہم نے کسی کا بھی دل توڑا ہے، کچھ بھی غلط کیا ہے، ہم فوراً توبہ اللہ کریں گے، لوگوں سے بھی اور اللہ سے بھی انشاءاللہ۔ اب جو ناشکری پن ہے بہنوں، ایک تو ہم اللہ کے بارے میں بھی ناشکری پن کرتے کہ کیا دیا ہے نا، کیا میری زندگی ہے، تو یہاں پر ہم لوگ اللہ کے ساتھ بھی ناشکری پن کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ تم نے مجھے کیا پالا، تم نے مجھے کیا دیکھے، مجھے پڑھائے نہیں۔ شوہر کو بھی ہم ناشکری باتیں کرتے، تم کیا کرے، میرے اماں کرے، میرے ڈیڈی نے کیے ہے نا۔ اور پھر ہم لوگ جو ہے اپنے آپ سے بھی ناشکرے ہوتے ہوئے نو، اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہم کو کمپلیکشن، ہماری جو ہے وہ ہر چیز، ہر اعضاء دیا ہے، بہت بہترین زندگی دیا ہے نا، ایمان کی دولت، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، سب کچھ دیا ہے بہنوں۔ پر کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنے آپ سے بھی شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، میری ناک کیوں ٹیڑھی ہے، میں کیوں ایسی کالی ہوں، میں کیوں ایسی ٹنگنی ہوں، میں کیوں ایسی موٹی ہوں ہے نا۔ تو کہیں نہ کہیں بہنوں شیطان جو ہے وہ ہم کو کیا کرتا ہے، یہ سب باتوں میں الجھائے رہتا ہے، ہمارے مقصد سے ہم کو کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے بہنوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے، ہم لوگ بہت بڑے مقصد کے لیے آئے بہنوں، ہم لوگ یہ سب چیزوں میں پڑھنے نہیں آئے کہ اس کا شوہر اچھا ہے، اس کا سسرال اچھا ہے، وہ نمازی نہیں ہے پھر بھی اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، میں اتنا نماز پڑھتی ہوں تو بھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ کہیں نہ کہیں ہم بھی قیاس کرتے ہیں بہنوں، تو ایسا ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اوکے، ہم کیوں آئے ہیں بہنوں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، بہترین آخرت بنانے آئے ہیں نا، جنت کمانے آئے بہنوں۔ تو ہمیشہ ہمارے مقصد کو ہم کو کیا کرنا ہے، سامنے رکھنا ہے۔ اور یہ جو ابلیس ہے نا بہنوں، یہ ہمیشہ ہم لوگ کو ہے نا نیگیٹیوٹی بہت بتائے گا، نیگیٹیو انسان ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی کہ ہمیشہ نئی کی بمبڑی بولتے ہیں نا ہم لوگ، کیا بولتے ہیں اس کے منہ میں تو بس نئی 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 رہتا، ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے نہیں ہے نا، ہر چیز کے لیے بولتے نا روتے رہتے ہے نا، ایسا نہیں رہنا ہے بہنوں۔ اوکے، ہم کو کیسا پرسن بننا ہے، پازیٹیو پرسن بننا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھو بہنوں، یہاں پہ آج بھی لوگ اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں، پتا ہے بہنوں، اگر آپ کبھی فری بیٹھے ہوں گے، یوٹیوب پہ جاؤ گے، اور اگر آپ ڈالو گے نا بہنوں، ایسے ایسے سرجریز، ایسے ایسے کاسمیٹک سرجریز لوگ کر رہے۔ ابھی ایک بہن نے مجھے آرٹیکل بھیجی کہ جاپان میں ایک آدمی، لڑکے نے اپنے آپ کو کتے میں کنورٹ کر لیا، وہ ڈاگ بن گیا بہنوں، اور اس نے اس سرجری کے لیے 11 لاکھ روپے خرچ کیے۔
सोचो बहनों कितना खर्च किए, 11 लाख रुपए खर्च किए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। इंसान कुत्ता बनने को तैयार हो गया है बहनों, उसके घर वाले, उसके दोस्त लोग ने भी उसको मना किए, बट वो अपनी बात पे बहुत अड़ा रहा। उसके बचपन की ख्वाहिश, हाँ, बचपन की ख्वाहिश बहनों, और ऐसी ख्वाहिश कि जिससे वो अपने आप को क्या बना दिया, कुत्ता बना दिया। ऐसे बहुत सारे सर्जरीज, बहुत सारे चीजें देखेंगे। एक लड़के को तो मैंने, एक आदमी को मैंने देखी, पूरा उसने टैटू बना दिया बहनों, सर से लेके पैर तक टैटू बना दिया। और उसकी आंखों के अंदर भी टैटू, काले काला आंखें कर दिया। उसकी जबान को भी उसने बीच में से चीर के दो कर दिया। और उसकी नाक को भी बहनों उसने खड्डे कर दिए। नाक में जो हमारा, कितनी बेहतरीन नाक अल्लाह ने दी है, उसने नाक के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, कान के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। उसके जो सर था बहनों, उसको टकला मार के वहां भी पूरे टैटू कर दिया। और वहां पर भी बहनों पूरा उसने सिंग होता ना, क्या चीज को उन लोग ने अंदर स्कल में डाले होंगे कि जैसे कि सिंग लगे हुए हैं। यानी अगर उसको देखो ना तो ऐसा लग रहा था कि शैतान को देख रही हूँ। यानी इतना, इतना अगली बहनों, इतना बुरा दिखने वाले इंसान को ये लोग बना देते हैं। अशरफुल मखलूकात, इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया। हाँ, दो पैरों पे आज हम लोग खड़े हैं, वो लोग अपने आप को अब क्या कर रहे हैं, इतना नीचे गिरा रहे। और ये सब में कौन खुश होता है बहनों, सोच के देखो। हाँ, ये सब में कौन खुश होता है, शैतान, है ना। तो बहनों हमेशा हम इस बात को क्या करें, याद रखें कि शैतान जो है ना, अल्लाह की जो तख्लीक है, क्रिएशन है, उस पर वो हमको क्या कर देता है, ऐसा बोलता है कि सही नहीं है, ये गलत है ना, तुम्हारे ये हिस्सा सही नहीं है। और हमको कभी भी है ना उदास रखेगा, सैड रखेगा, और हमेशा ये सब कामों में लोग पड़े रहेंगे। अब मैंने आज कहा था कि मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि शैतान का मेन दो गिजा क्या है, जो वो चाहता है कि हम सबके अंदर आ जाए। एक तो है बहनों बेहयाई, यानी वो क्या चाहता है बहनों कि हमारे अंदर क्या आ जाए, फहश आ जाए। हाँ, हम लोग नंगे हो जाए। यही चीज है बहनों जो शैतान के अंदर है ना बहनों, ये बहुत है, बहुत उसका पुतना, उसका मेन लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम को भी उसने मेन, उसने क्या किया, उनके कपड़े निकाल दिए, है ना। उसका मेन जो चीज है ना बहनों, वो चाहता ही क्या है पता है, कि हमारे कपड़े उतर जाए, हमारे कपड़े उतर निकल जाए। गिजा यानी कि फूड, उसका फूड क्या है, वो हमारा, मतलब अगर देखो बहनों, एक हमारे अंदर है नूरानी खाना, गिजा जो जाता है, कुरान है, हदीसें है, नमाज है, रोजा है, जिक्र है ना, ये हमारी रूहानी गिजा का, रूहानी गिजा है जो हमको जरूरत है, राइट। और एक जो है हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, हमारा ख्याल रखते हैं। तो ये जो शैतान है ना, वो चाहता है कि हमारे अंदर दो चीजें आ जाए। एक तो मैंने कहा बेहयाई, शर्म और हया को खत्म करना चाहता है हमारे अंदर से। क्या चाहता है बहनों, कि शर्म और हया खत्म हो जाए। वो हमारे पास, या आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम के पास फौरन आके ये नहीं बोला कि नंगे हो जाओ, बस नंगे हो जाओ, नहीं। उसको पता है कि कोई भी फौरन नंगा नहीं होएगा, है ना। तो वो क्या करता है बहनों, आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे जाल में हमको फंसाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि समझ जाओ मैं मोटी हूँ, ओके, तो वो बोलेगा कि हेल्दी होना चाहिए, दुबले रहना चाहिए, देखो आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है, आजकल के लोग कितने दुबले पतले, कितने अच्छे हैं, है ना, तो तुमको भी ऐसा होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, मुझे उस बात में लाएगा। फिर मैं क्या करूंगी बहनों, दुबले पतले होने के लिए पता नहीं कौन सी डाइटिंग करूंगी। देखो मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कैसे वो लाएगा। हो सकता है एक आध क्लासेस भी छोड़ दूं, एक्सरसाइज करने, जिम जाने, जिम जाके वहां गाने बजेंगे, समझ में आ रहा है, तो गाने तो है ही है। और फिर वो आहिस्ता 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 जब मैं दुबली पतली खूबसूरत हो जाऊंगी, तो वो बोलेगा कि अरे अभी क्या फायदा ये बुर्का पहनने का, इतना ढापने का, अभी तो कितनी अच्छी दिखती है, कितना, सब तारीफें करेंगे, सब तारीफें करेंगे। और बोलेगा कि क्यों ऐसी दुबली होके, क्यों ऐसा अपने आप को छुपा रही है, यही तो मेन है, यही तो वक्त है, बाद में तौबा तिल्ला कर लेना, उम्रा हज कर लेना, अभी बहुत वक्त है, अब तू जवान है, देखो अल्लाह ने क्या बाल दिए, क्या खूबसूरती दिए। तू जब पर्दा करती है तो अच्छी नहीं लगती, गरम भी कितना होता है, अभी तेरे तेरे चेहरा खराब हो रहा है, तेरे बाल खराब हो जाएंगे, अभी छोड़ दे, ये वो। और फिर कहीं ना कहीं लोगों की शक्ल में भी आएगा वो, समझ में आ रहा है, लोगों की शक्लों में आएगा। शैतान डायरेक्टली नहीं आ सकता, समझ में आ रहा है, वो कैसे आता है, लोगों की शक्ल बना, शक्ल से आता है। और फिर आके वो बोलेगा
کہ کیا بولے گا کہ تم جو ہے وہ کیا ہو جاؤ، اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسپوز کرو، برقع چھوڑ دو. دیکھو سلوار قمیص پہنو، دوپٹہ بھر کے پہن لو، حجاب کر لو نا، خالی برقع تو پہننے منع کر رہا ہے. تو وہ پہلے ایک برقع اتار دے گا، ہم لوگ بولیں گے ہاں میں کون سا غلط کر رہی ہوں، پہنی تو ہوں نا، پورے کپڑے پہنی ہوں نا، دوپٹہ بھی پہن لی، حجاب بھی کر لی. پھر وہ آہستہ آہستہ آئے گا کہ دیکھو یہ کائی کے لیے نا، ویسٹرن کپڑے بھی تو سیم ہی ہے نا، پورا تو ڈھاک ہی لیتا ہے نا. تو وہ آہستہ 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 آ کے نا بہنوں ہمارے کپڑوں کو کم کرتا چلا جائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ ہم جو ہے وہ پورے کے پورے کیا ہو جائیں گے، ننگے، جیسے کہ ایکسپوز کرنے والے ہو جائیں گے. ہمارے کپڑے جو ہے وہ غیر اللہ کے ہو جائیں گے. آ رہا سمجھ میں؟ کبھی ساڑی پہن لو، کبھی اس کے کپڑے پہن لو، گاؤن پہن لو، مطلب کچھ ایسا پہنو جو کہ پتلا رہے گا، ٹرانسپیرنٹ رہے گا، ٹائٹ رہے گا، ایکسپوز کرتا رہے گا، یہاں وہاں سے کھلا ہوا رہے گا. تو وہ الٹیمم کیا چاہتا ہے کہ ہم کیسے ہو جائے، بے حیا ہو جائے، شرم اور حیا ہماری کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. اور دوسری چیز کیا ہے بہنوں، میوزک ہمارے اندر وہ لے کر آ جائے گا. ہم اس کو وہ پتا ہے، ایک صحابہ کے بارے میں واقعہ بتاتی ہوں بہنوں، کہ ایک مرتبہ ایک صحابہ تھے، ان کے سامنے جو ان کا اندر کا جو نفس یا شیطان ہے نا، وہ سامنے آ گیا. اوکے، دیکھو یہ نا بہت ریئر ہوتا ہے، مگر ان کا جو اندر جو شیطان، ان کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے نا، نفس، برا نفس، وہ ان کے سامنے آ گیا، جو ان کی ہی شکل کا تھا. مگر فرق کیا تھا، جو صحابہ تھے وہ بہت اچھے تھے، ہیلدی تھے، اور وہ جو شیطان ان کے سامنے آ گیا وہ بہت دبلا پتلا اور بہت ہی کالا، بہت ہی کمزور تھا. تو پہلے تو وہ صحابہ ڈر گئے اپنے آپ کو دیکھ کے. پھر انہوں نے ہمت کیے اور پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں جو ہوں وہ کون ہوں، شیطان ہوں، تمہارے ساتھ جو رہتا ہوں نا، نفس، وہ ہوں. تو پھر کہا کہ اچھا تمہاری یہ حالت کیوں ایسی ہو گئی ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں، تمہاری حالت کیوں ایسی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا، شیطان نے کہا کہ تم مجھے میری غذا نہیں دیتے ہو، جب مجھے میری غذا نہیں پہنچتی ہے تو میں کمزور ہوتا چلا جاتا ہوں. تو پھر وہ صحابہ نے پوچھا کہ تمہاری غذا کیا ہے، تمہارا کھانا کیا ہے، تمہارا فوڈ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میوزک اور بے حیائی، فحش کامیں، جب یہ مجھے ملتا ہے تو میں بہت تگڑا ہو جاتا ہوں، بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہوں، اور یہ دو چیز جب مجھے نہیں ملتی تو میں کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہوں. اور یہی وہ ریزن ہے کہ صحابہ وہ دو چیزیں کبھی دے ہی نہیں رہے تھے، تو وہ جو شیطان تھا وہ کیسا ہو گیا، کمزور ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ ہمیشہ بولتے نا کہ ارے پتا نہیں میں شیطان کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتی، وہ میرے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، پھر میں اس کی باتوں میں آ جاتی ہوں. بہنوں اگر ہم اس کو اس کا فوڈ ہی نہیں دیں گے، اس کا کھانا ہی نہیں دیں گے، تو وہ بٹ آف کورس کمزور ہو جائے گا، ویک ہو جائے گا، رائٹ؟ تو ہم کو کیا کرنا ہے، میوزک سے بہت زیادہ بچنا ہے. اگر کوئی شارٹس دیکھ رہے، کوئی انسٹاگرام ریلز دیکھ رہا ہے، کچھ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں بہنوں ٹائم پاس میں، ہے نا، تو اس میں بھی اگر اسٹیٹس میں بھی اگر میوزک رہے گا تو فوراً وہ اسٹیٹس کو ہٹا دے. ہم کو ہے نا کوئی میوزک کے قریب بھی نہیں جانا ہے، سننا تو دور کی بات ہے بہنوں، اس کو پروموٹ بھی نہیں کرنا ہے. ہم لوگ ڈال دیتے اسٹیٹس، اس میں بھی میوزک ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میوزک سے بہت دور رہنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلی مبارک کانوں میں ڈالتے تھے. ہم لوگ تو کیا کانفیڈنٹ پہ جیتے ہیں بہنوں، گھر میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، پکچر یا سیریل، ہم لوگ بولتے ہیں ارے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیسے فرق نہیں پڑتا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے ہٹ جاتے تھے، اگر یہاں میوزک بج رہا ہے تو وہ اپوزٹ پہ چلے جاتے تھے اور وہ اپنے دونوں انگلیوں کانوں میں ڈالتے تھے. بہنوں تو ہم کو بھی یہ بات یاد رکھنا ہے، ہم لوگ کوئی فرشتہ نہیں ہے، رائٹ؟ سوچو نبی ایسا کر رہے اور ہم لوگ بولتے ہیں ارے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں. نہیں، کم از کم وہ سنت تو ادا کریں گے، ہماری نبی کی سنت ہی صحیح ہے نا، اس کو ہم کیا کریں گے، زندہ کریں گے. یاد رکھنا بہنوں، اگر زندگی میں میوزک رہے گا تو کبھی قرآن نہیں آئے گا. اور اگر ہم چاہتے کہ ہمارے زندگی میں قرآن ہو تو ہمارے زندگی میں میوزک نہیں رہنا چاہیے. اور دوسرا ہمارے زندگی میں کیا ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو تقویٰ کیسے آئے گا بہنوں؟ اگر بے حیائی، شرم آ جائے گی نا بہنوں تو کبھی تقویٰ نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، حیا آدھا ایمان ہے بہنوں. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم سب کیا ہو جائے، بے حیا ہو جائے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو ہم کو کیا کرنا ہے، تقویٰ حاصل کرنا ہے، اللہ کا ڈر خوف رکھنا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ مجھے فحش کے قریب بھی نہیں جانا ہے. گالیاں بھی اسی میں آتا ہے بہنوں، وہ بھی کیا ہے، فحش ہے. وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ گالی
बोलना है, ना गाली सुनना है, ना हमको अडल्ट जोक्स देखना है। हम लोग बोलते हैं अरे मेरी शादी हो गई, मैं तो मेरे शौहर के साथ बैठ के गंदी पिक्चर देख रही थी, क्या हो गया, शौहर ही है। नहीं बहनों, ये गंदा देखना, ये गंदा सुनना, गंदा बोलना सब इसमें आता है। हम गालियां ना दे, हम अडल्ट जोक्स ना भेजे, ना बोले, ना गंदी बातें करे। हम जितना हो सके हया करे बहनों। हम औरतें जो है औरतों के सामने कपड़े पहनते हैं, ये भी मना है बहनों। हमारा जिस्म कोई नहीं देख सकता। अगर 4 औरतें घर में है तो हम बाथरूम में जाके कपड़े चेंज करें या कोई कमरे में जाके चेंज करें, सबके सामने हम नंगे हो जाते हैं बहनों। ये किसने हमको जो है वो पावर दिया है? हाँ, हम नहीं कर सकते बहनों। याद रखना, जब भी हम कपड़े बदलते हैं तो हमको क्या बोलना है? बिस्मिल्लाह बोलना है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे जिन्नात और ऐसे ऐसे इबलीस वहां पे सब होंगे बहनों। तो कपड़े पहनने से पहले हमको क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जाते हैं हमारी आयतों की तरफ। कल हमारा जो सबक चल रहा था, मैं वहां से बोलते हुए इसको लेके चलती हूँ बहनों, जहां पर अल्लाह तबारक ताला जो है शैतान को उन्होंने जन्नत से बाहर निकाल दिया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कहा जन्नत में रहो, खाओ पियो, है ना, एक दरख्त के करीब मत जाओ। मगर शैतान जो था वो क्या कर रहा था? वसवसे डाल रहा था। अब जब वो वसवसे डाल भी रहा था बहनों, तो एवरीबडी नोज कि शैतान है और गलत चीज बोल रहा है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम उसकी बातों में कैसे आ गए? राइट? क्योंकि बहनों जो शैतान है ना या इब्लीस है, ये कभी भी एक बार नहीं आएगा, ये बार बार आएगा, बार बार आएगा। और एक बार या 2 बार यानी कि वो मुसलसल आएगा और इस ये झूठे बातें हमको बोलता रहेगा। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है ना, हम लोग कितना भी कंट्रोल करते, पर एक बार तो दिमाग में आ ही जाता है कि यार वो इतने बार बोल रहा है, चलो देख ही लेती हूँ ना कितना सही है कितना गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बच्चा ही नहीं हो रहा है और कोई आके मेरे को बार बार इंसानी शक्ल में, मेरे रिश्तेदार, मेरी सग्गी कोई रहेगी जो मैं बार बार बोल रही है कि देख तेको बच्चा इतने साल से नहीं हो रहा है, चलना यहाँ पे एक मजार है, वहां पे तू सिर्फ नियत कर ले, खाली आके देख। देखो अल्लाह को मानना ही है, देखो अल्लाह से तो नहीं रुका रही हूँ मैं, देखो नमाज कुरान रोजे से नहीं रुका रही हूँ, सिर्फ देखो बोल रही हूँ कि एक बार आके वहां पे बैठ के दुआ कर ले, देख देखो औलाद हो जाएगी। मेरे साथ भी हुआ था, कसम खाती हूँ, कितनों को हुआ था। वो एक बार बोलेगी मैं मना कर दूंगी, 2 बार बोलेगी मना कर दूंगी, मगर वो मुसलसल बोलती जाएगी और मेरे को बच्चा ही नहीं होएगा। तो कहीं ना कहीं एक औरत क्या हो जाती है? वो कमजोर हो जाती है। वो बोलती चलो जाके देखने में क्या जा रहा है। समझ में आ रहा है? फिर कहीं ना कहीं हम लोग क्या हो जाते हैं? फिसल जाते हैं। आ रहा है समझ में? उसी तरह बहनों मियाँ बीवी के बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिसकंसेप्शन यानी झूठ बात बोल देते। अरे तू ऑफिस में था, तेरी बीवी तो ये करी, या बीवी को बोलते कि तू तो पता नहीं शादी के पहले तेरे मर्द का कोई चक्कर था। अब ये कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, वो लोग बार 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 बोलते हैं। और फिर क्या होता है? हमारे अंदर भी शक पैदा हो जाता है और फिर हमारे रिश्ते भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो शैतान जो है ना, उसकी टैक्टिक्स को समझना है बहनों। वो एक बार ऐसा नहीं हुआ कि आया बोला चला गया, नहीं, वो बारहा बारहा बोल रहा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कभी कभी जो झूठ बात इतने बार हम लोग सुनते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि भाई इतने बार एक इंसान कैसा वो एक ही बात बोल सकता है? चलो ना एक बार देख ही लेते हैं, सुन ही कर लेते हैं, जाके कर देखने में क्या जा रहा है? और फिर इंसान क्या हो जाता है? फिसल जाता है। शैतान एक ऐसा चीज है बहनों कि आता है ना कि सांप के बच्चे को कितना भी दूध पिलाओ, कभी ना कभी वो मौका जब मिलता है तो वो डस लेता है। उसी तरह ये शैतान है बहनों। ये शैतान कैसा है बहनों? वो कभी हमारे साथ दोस्ती नहीं कर सकता। वो हमारा क्या है? खुला हुआ दुश्मन है। और उसने क्या कहा कि तुमको क्यों मना किया जा रहा है ये दरख्त से? वरना तो फिर तुम क्या हो जाओगे? फरिश्ते हो जाओगे। यानी कि वो क्या बता रहा है कि देखो फरिश्ते जो है ये आइडल किरदार है, बहुत उम्दा किरदार है ना? या तो तुम ऐसे हो जाओगे या तो तुम क्या हो जाओगे? हाँ, तुम जो है वो हमेशा रहने वालों में से इमॉर्टल हो जाओगे। तो वो बेसिकली क्या कर रहा था बहनों? हमारे अंदर ख्वाहिशात डाल रहा है, ख्वाहिशात।
है ना। ख्वाहिशात हमारे अंदर है बहनों, मेरा भी मन करता है कि मैं भी घूमूं फिरूं, है ना, अच्छी लाइफ जीऊं, ऐश इशरत में जीऊं। तो ये ख्वाहिशात जो है ना बहनों, ये इंसान के अंदर है। तो हमको क्या करना है बहनों, ये ख्वाहिशात पर पैर रखना है। जो भी ख्वाहिशात ऐसी है जो मुझे मेरे दीन से हटा देगी, मेरे इस्लाम से मुझे दूर कर देगी, या मुझे अल्लाह से दूर कर देगी, कोई भी ऐसी गलत ख्वाहिशात है, उस पर मुझे क्या करना है, पैर रखना है। समझ में आ रहा है? वरना तो फिर क्या हो जाएगा, हर इंसान जो है वो बहक जाएगा, वो रगबत दिलाता रहेगा, रगबत दिलाता रहेगा, चलो यहाँ पे सेल है, चलो यहाँ पे आज खाने पर ये ऑफर है। समझ में आ रहा है? और हो सकता है देखो बहनों, वहां जाने पर नमाज छूट रही है, मेरी क्लासेस छूट रही है, मेरा मेरा ऊपर नीचे टाइम टेबल हो रहा है, तो हम ऐसी ख्वाहिशात की जगह पर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। समझ में आ रहा है? और वो क्या बनकर आया, कसम खा के कह रहा है, तो कसम तो अव्वल तो खाना ही नहीं है बहनों, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर ही हम कसम खा सकते हैं, वरना तो हम बिल्कुल नहीं खा सकते बहनों। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, झूठी कसम खा रहा है, और क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। तो इससे हमको क्या सीखना है बहनों, कि हमको जो है वो क्या करना है, हर एक का खैर ख्वाह बनना है। इसने तो झूठे बातें बोला, झूठी कसम खाया, हम लोगों को क्या करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, हम सबके क्या बनेंगे, खैर ख्वाह बनेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल की आयतें थी बहनों, मैं आज आ जाती हूँ आयत नंबर 22 पर, जहां पर हमारा सबक चल रहा था। ओके, मगर अब तक जितने भी बताया गया बहनों, सबको सब बातें समझ में आई या सर के ऊपर से गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सब बातें क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग जाग रहे हैं ना, सो नहीं रहे ना? ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हमको है ना शैतान से बचना है। शैतान से कौन बच सकता है? जो उसके बारे में जानेगा, पहचानेगा, वही बच सकता है ना। शैतान शैतान को जब तक मैं अपना दुश्मन नहीं मानूंगी, दुश्मन नहीं जानूंगी, शैतान को जब तक मैं है ना अपने आप पर कंट्रोल नहीं करती, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो मुझे शैतान को मेरा दुश्मन जानना है, शैतान के बारे में सब कुछ जानना है, और फिर ही मैं क्या हो सकती हूँ, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के हुक्म से मैं बच सकती हूँ। मैं अल्लाह की पनाह भी मांगूंगी, अल्लाह का खूब जिक्र करूंगी, और फिर मैं क्या करूंगी, शैतान से लड़ूंगी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखे बहनों ये सब पॉइंट्स। ओके, आ जाते हैं आज की आयतों पर, जहां पर अल्लाह तबारक ताला हमसे क्या कह रहा है। फिर क्या हुआ उसके बाद कि तहकीक के उसने क्या किया, उसने जो है खींच लिया दोनों को धोखे से। अब दोनों को उसने क्या किया, मीठी मीठी बातें बार बार बोल बोल के, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी मीठी मीठी बातें बोलकर उन दोनों को जन्नत से क्या कर दिया, खींच लिया, है ना, धोखे से उनको क्या कर दिया, उनको जो है मिसलेट कर दिया। अब देखो बहनों, हमारे साथ भी ऐसा होगा, जो हमारे शैतान जो है वो इंसानी शक्ल में ही आएगा। समझ में आ रहा है? अब कैसे पता चलेगा कि ये इंसान है या शैतान है, कौन है, ये कैसे पता चलेगा? अगर वो इंसान हमको शरीयत के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है बहनों, अगर वो इंसान हमको शरीयत के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है, तो समझ जाना है कि वो कौन है, हमारा जो है वो खैरख्वाह नहीं है। ओके, ये समझ जाएंगे हम लोग, और हम लोग क्या करेंगे, उससे बचेंगे। जैसे कि कितने औरतें औरतों के पास आके बोलते हैं, अरे तेरे आईब्रोज कितने गंदे लग रहे हैं, चल जाके इसको प्लकिंग कर ले, इसको अच्छा कर ले, शौहर देख देखो क्या सोचता रहेगा, है ना। ऐसी ऐसी बातें बोल के उसको क्या करते हैं बहनों, जिस पर हमारी नबी की लानत है ना, आईब्रोज को प्लकिंग करना, ऐसी ऐसे कामें वो लोग करवा लेते। तो समझ में आ रहा है, जो मतलब वो बोलेंगे कि लोग है ना हंसते हैं तेरे ऊपर, तेरा शौहर तेरे से दूर हो गया, हाँ, ऐसी ऐसी बातें बोल के वो हमको क्या करते हैं, बहका देते हैं। तो याद रखना है, ये धोखे में हमको नहीं आना है। शैतान ने भी क्या किया, उनको धोखे से उनको क्या कर दिया, खींच लिया। फिर जब उन दोनों ने चखा, दोनों ने चखा दरक
ہو. اب یہ لوگ نے کھائے نہیں ہے بہنوں, یہ لوگ آرام سے بیٹھ کے مزے لے کے کھائے نہیں ہے. یہاں پہ اللہ نے کیا ورڈ رکھا ہے, صرف ان لوگ نے کیا کیے, اس کو چکھے, صرف انہوں نے کیا کیے, اس کو ٹیسٹ کیے. جیسے انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیے تو کیا ہو گیا بہنوں, کھل گئی ان دونوں میں سے ان دونوں کی شرمگاہ. جیسے ہی کھانے کا کھائے وہ شرمگاہ جو تھی وہ کھل گئی. میں نے کل بھی بتائی نا بہنوں, عیاشی وہی کرتا ہے جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. یعنی کہ شیطان کیا کرتا ہے نا بہنوں, کیسے ہم کو ننگا کر سکتا ہے, اگر جو لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا نا ویسے ہی اثر ہوئے گا, اگر حرام جائے گا تو ویسے ہی کیا کرے گا, اثر کرے گا. اس کے لیے بہنوں آتا ہے کہ پک, سور, خنزیر کا گوشت منع ہے. کیوں منع ہے؟ اس میں بہت نقصانات ہے, اور ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہے نا بہنوں, وہ خنزیر جیسا ہی ہو جاتا ہے. خنزیر کیسا ہے پتا ہے, وہ گندگی میں رہتا ہے, گندگی کھاتا ہے, اور وہ اپنے پارٹنر کو, ہاں اپنی زوجہ کو وہ دوسرے پارٹنر کے ساتھ ہم بستری کرنے دیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, وہ اپنے پارٹنر کو دوسرے کے ساتھ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے, الٹا وہاں پہ جا کے وہ دونوں کو کرنے چھوڑ دیتا ہے, پردہ کرتا ہے. مطلب کتنا گندا جانور ہے. اور وہ جانور اگر کوئی کھائے گا تو وہ بھی ویسے ہی بدکاری کرتا ہے. پارٹیوں میں جا کے, ڈسکو میں جا کے اپنی بیویوں کو سویپ کرتے ہیں, ہے نا, چل تو میری بیوی کے ساتھ, میں تیری بیوی کے ساتھ, ہے نا. تو یہ سب چل رہا ہے بہنوں. اوکے, تو وہ جو لقمہ جائے گا ویسے ہی اثر ہوگا. اس کے لیے کیا بولتے ہیں کہ جو بھی کھائے سوچ سمجھ کے کھائے, ہے نا, حلال چیز کھائے, پاک چیز کھائے, انگریڈینٹس کو دیکھ کر کھائے, ہے نا, ورنہ جو کھائیں گے ویسا اثر ہوئے گا. اب یہاں پہ دیکھو نا, جیسے وہ لوگ نے چکھے, ان کے جو کپڑے تھے جنتی لباس تھے یا نورانی لباس تھے, جو بھی تھے, وہ کیا ہو گئے بہنوں, ہٹ گئے, ایکسپوز ہو گئے. کیا ایکسپوز ہو گیا, ان کے پرائیویٹ پارٹس جو اب تک چھپے ہوئے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں. اس کے لیے آتا ہے نا کہ جو لوگ شادی نہیں کر پاتے, ہے نا, ان کی جو بھی مجبوری ہوتی ہے اور ان کے اندر شہوت پھٹی ہوئی رہتی ہے, تو وہ کیسے کنٹرول کرے, تو ان کو کیا آتا ہے کہ روزہ رکھے, ہے نا, وہ کیا کرے, روزہ رکھے جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہے, کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھو تیز تیز کھاتے انسان کے اندر بھڑکتا ہے, رائٹ, جیسا کھاتے ویسا اثر ہوتا ہے بہنوں. یہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جس فروٹ سے یا جو بھی تھا جس سے فوربڈن تھا, منع تھا, جیسے انہوں نے اس کو چکھا, ان کے پرائیویٹ پارٹس کیا ہو گئے, ایکسپوز ہو گئے. اور پھر کیا ہو گئے, وہ دونوں چھپانے لگ گئے اپنے شرم گاہوں کو, کس سے, جنت کے پتوں سے. یعنی فوراً دیکھو, یہ فطرتن ہے بہنوں, حیا جو ہے وہ فطرتن انسان کے اندر ہے. آج بے حیائی سکھایا جا رہا ہے. آج بچوں کو سیکس ایڈوکیشن کے نام پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن میں ہی کہتے ہیں کہ تمہارے کپڑے نکالو. یہ ہو رہا ہے بہنوں فورن کنٹریز میں, بولتے ہیں کہ کپڑے نکالو, ایک دوسرے کو ٹچ کرو, دیکھو تم کو کس کی طرف اٹریکشن ہو رہا ہے, لڑکے کے طرف کہ لڑکی کی طرف, تم کو اپنا جینڈر پتا چلے گا. دیکھو وہ لڑکا پیدا ہوا, وہ لڑکی پیدا ہوا, نیچر وائز اس کو بول رہے نہیں, تم نیچر سے الگ بھی ہو سکتے ہو سکتا ہے تمہارے اندر فیمنزم ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر لڑکا چھپا ہو. اس کو بولتے ٹچ کرو دوسرے لڑکے کو ٹچ کر کے کچھ ہو رہا ہے مطلب تم گے ہو, لڑکی کو ٹچ کر کے کچھ ہو رہا ہے تم لیسبین ہو. مطلب ایل جی بی ٹی کو وہ لوگ اتنا پروموٹ کر رہے, اتنا پروموٹ کر رہے بہنوں, کہ پیرنٹس جو ہے وہ لوگ ہے نا, وہ لوگ باہر کھڑے ہو کے پھر وہ لوگ کھڑے ہو جاتے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے, کچھ نہیں پتا, ان کے ذہنوں میں غلط چیزیں ڈالی جا رہی ہے, زہر ڈالا جا رہا ہے. یہ سب شیطان کے کام ہے بہنوں. بے حیائی, شرم, یہ سب وہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہم لوگ دین سے دور ہو جائے, قرآن سے دور ہو جائے. سمجھ میں آ رہا ہے, ایمان سے ہم ہٹ جائے. اور یہ سب جب پیرنٹس پروٹیسٹ کرتے ہیں بہنوں, تو پتا ہے پولیس آ جاتی ہے اور بولتی کہ نہیں جو اسکول والے کر رہے وہ صحیح کر رہے. سمجھ میں آ رہا ہے, ایسے دور میں ہم چل رہے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں ہر جگہ یہ چل رہا ہے بہنوں. اللہ کا شکر ہے انڈیا تک یہ نہیں آیا, پر یہیں پر بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں پروموٹ کری جا رہے ہے نا. تو بہنوں یاد رکھنا, فطرتن ہمارے اندر کیا ہے, حیا ہے. اور یہ کیوں کپڑے نکل گئے بہنوں, کیونکہ جیسے نافرمانی کیے کپڑے نکل گئے.
जैसे बंदा गुनाह करता है उसके भी इज्जत के जो कपड़े होते हैं, तकवे के जो कपड़े होते हैं, उतर जाते हैं। जो जितना गुनहगार होता है बहनों, उसकी उतनी बेइज्जती होती है, उसका कोई जो है वो रौब नहीं होता। जितना एक बंदे के अंदर तकवा होता है, खौफ होता है, जितना वो बंदा फरमाबरदार, इताअत गुजार होता है, ओबीडियंस जिसके अंदर होती है, उसको अल्लाह तबारक ताला तकवे का लिबास पहनाते हैं। उसके अंदर रौब होता है बहनों। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब, 1 महीना के मुसाफिर, यानी कि 1 महीना जो होता है ना, 1 महीने का जो सफर होता है, फासला होता है, उतना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब दुश्मनों पर पड़ता था बहनों। आज हमारा रौब या हमारा कुछ भी नहीं पड़ता, सामने वाले शौहर पे नहीं पड़ता। क्यों? हमारे अंदर तकवा नहीं है, हमारे अंदर खौफ नहीं है, है ना? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी भी इज्जत हो, तो हमको क्या करना है? हमारे अंदर तकवा लाना है, फरमाबरदार होना है। बहनों, ऐसे फरमाबरदार होना है कि जमीन वाले पहचाने ना पहचाने, आसमान वालों में हमारा जिक्र हो, आसमान वाले हमें पहचान ले, है ना? ये ज्यादा क्या है? जरूरी है। तो बहनों, इससे क्या पता चलता है कि लिबास, हया हमारी जीनत है बहनों। ये उतर गया, पूरा जेवर ही उतर गया, है ना? जितना इंसान नंगा हो रहा है ना बहनों, मत समझना कि वो नंगा हो रहा है, उस पर अल्लाह का उतना अजाब है। यहाँ पे क्या हुआ? एक खता हुई, एक नाफरमानी की, अल्लाह ने लिबास को उतार दिया। जो औरतें बहनों जो लिबास उतार रही है, वो सोचती वो उतार रही है, अरे अल्लाह का अजाब है, सजा है तेरे ऊपर कि तू नाफरमानी पे नाफरमानी कर रही है, और तेरे ऊपर लिबास जो है वो कम होता चला जा रहा है। वो उसमें खुश हो रही है, वो उसमें गुरूर कर रही है, क्या जितना मॉडर्न उतने कम कपड़े, कोई खुशी की बात नहीं है। उस पर क्या सजा हो रहा है वो कल बेहतर जाने, है ना? तो याद रखे बहनों, हमको इनके जैसे नहीं होना है। यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से जो हो रहा है ये सब गुनाह, ये गलती से हो रहा है बहनों, शैतान की बातों में आके गलती से हो रहा है। और यहाँ पर अल्लाह उनकी पकड़ कर रहा है। हमारी बच्चियों को सब पता है क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या पर्दा है, सब पता है, फिर भी वो कर रहे हैं। तो सोचो बहनों, जो अनजाने में करता है और जान के करता है, तो उसके साथ क्या मामला होगा। अल्लाह हमारी क्या करे? हिफाजत करे। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? उन दोनों को निदा किया, दोनों को पुकारा, है ना? किसने? उनके रब ने। और क्या कहा? क्या नहीं तुमको मैंने मना किया? तुम दोनों को मैंने क्या नहीं मना किया था इस दरख्त से? अब दोनों से कहा जा रहा है। हाँ, अब यहाँ पर जो है दोनों से कहा जा रहा है, बार बार दोनों का सेगा आ रहा है बहनों। हाँ, तो याद रखिए ये। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि और मैंने कहा था तुम दोनों को कि बेशक शैतान तुम दोनों के लिए क्या है? खुला हुआ दुश्मन है। याद रखना है बहनों, वो हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ा खुला हुआ दुश्मन है। वसवसे डालेगा, बार बार आएगा, मगर हम लोग क्या है? अशरफुल मखलूकात है। वी हैव द पावर। हमारे पास कुरान का पावर है, हदीसों का पावर है, हमारे पास अल्लाह की ताकत है। अगर हम चाहे, हाँ बहनों, तो हम हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग ज्यादा ऊपर है, वो सिर्फ डालेगा वसवसे। उसका जो फरेब है बहुत कमजोर है बहनों। हम लोग के पास ज्यादा पावर है, तो कभी भी उससे हारना नहीं है, बल्कि हमको क्या करना है? जीत कर बताना है, इंशाअल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको क्या बता रहा है? फिर ये देखो बहनों, दोनों ने जो है वो गलत, दोनों से गलती हो गई। दोनों ने क्या किया बहनों? उनको अल्लाह तबारक ताला ने, ये दोनों जो है वो अपने आप को छुपाने लग गए। जैसे जो है कपड़े निकल गए बहनों, उनके शर्मगाह जाहिर हो गए। फितरतन उन्होंने फौरन जो है वो, आदम अलैहिस्सलाम बहुत लंबे थे, खजूर के दरख्त के जैसे लंबे थे, घुंघरू वाले बाल थे बहनों, उनके घने बाल, उनके घने बाल थे सर पे। और जैसे उन्होंने देखे कि उनके कपड़े निकल गए बहनों, वो भागने लगे। अल्लाह ने उनको पूछा कि क्या हुआ? तो उनको जो है ना इतनी शर्म आने लग गई, इतनी शर्म आने लग गई। तो कितनी शर्म थी वो लोगों में। आज हमारे अंदर ये शर्म हया ही चली गई। हम लोग कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, हमारे पैर भी हम लोग है ना एकदम गलत तरीके से सोते हैं और बैठते हैं बहनों, हमारे अंदर से वो हया निकल गई। और खासकर हमारे बच्चों में भी नहीं है। बच्चों के अंदर भी हमको ये तालीम डालना है बहनों। अगर हम हमारे बच्चों को ऐसे बचपन में ही
ऐसे कपड़े पहनाएंगे, वो बड़े होके क्या हया करेंगे। बचपन से हम लोग उनको ऐसे गंदे गंदे कपड़े पहनाते हैं, ये सोच के कि अभी बच्चे हैं, चलता है। बाद में हमको क्या भरोसा कि ये बच्चे वैसे कपड़े नहीं पहनेंगे और हमारे बच्चे हिजाब में आ जाएंगे, क्या भरोसा बहनों। हो सकता है कि हमारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं मम्मी, बचपन से जो तुम पहना रहे थे अभी भी मैं वही पहनूंगी, वैसे ही मेकअप करूंगी, वैसे ही फैशन करूंगी, वैसे ही फोटो खींचूंगी। तो हम लोग फिर क्या करेंगे बहनों। जो बोएंगे वही काटेंगे। बचपन से ही बुनियाद बनाना है, बचपन से ही बच्चों को ट्रेन करना है। बचपन में छोड़ देते हैं पूरा खुला और फिर बाद में बोलते हैं अभी उनको कंट्रोल करेंगे, कैसे हो सकता है बहनों। शैतान भी देखो हमारे पैदाइश से पहले आके बैठा था हमको बहकाने के लिए। हालांकि नामे अमाल खुला भी नहीं, बलू मेचोरिटी के बाद खुलता है, फिर भी वो बैठा है बहकाने के लिए। और हम लोग एक कॉन्फिडेंट लेवल पे जी रहे कि नहीं कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होता। नहीं बहनों, सब असर होता है। हम याद रखें, हया जो है वो जीनत है, बहुत ही अजीम जेवर है। इससे जो महरूम हो गया वो बहुत बड़ी चीज से महरूम हो गया। खुद भी हया करे, बच्चों में भी हम इसको डाले। ओके। अब जब ये दोनों से गलती हुई तो दोनों को अल्लाह ने सिखाया, है ना, माफी मांगना सिखाया। दोनों ने अपने गुनाहों का एतराफ किया। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि दोनों ने क्या कहा, रब्बना, हमारे रब, जलमना, हमने अपने आप पर जुल्म किया, अपनी जानों पर जुल्म किया। याद रखना बहनों, ये दुआ को हम भी सीखे, हम भी पढ़े। कितना बड़ा गुनाह हो गया, कितनी बड़ी लग्जिश हो गई। मगर यहाँ देखो, वो अंबिया थे, सबसे पहले इंसान थे, नबी थे, प्रॉफिट थे, उनसे भी गलती हो गई, उन्होंने भी ये दुआ पढ़े, अल्लाह ने माफ कर दिए। तो हमसे भी बहुत गलतियां होते, बहुत गुनहगार है। अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना है। अगर हमसे भी हो गया है तो हम क्या करें, अब ये दुआ पढ़े। क्या दुआ पढ़े, हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, और अगर नहीं तुमने हमको बख्शा और नहीं तुम हमारे पर रहम करोगे तो जरूर हम हो जाएंगे किसमें से, खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह, हम लूजर हो जाएंगे। अल्लाह, अगर तू मेरे गुनाह को माफ नहीं किया, मेरे पर रहम का मामला नहीं किया, तो या अल्लाह मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तो दिल से इसको दुआ करे। देखो बहनों, सबसे ज्यादा अच्छा शख्स कौन होता है, जो गुनाह करता है मगर फिर भी वो क्या करता है, तौबा तिल्ला करता है। आ रहा है समझ में। हमसे भी गुनाह होता है, हम तौबा तिल्ला करके अल्लाह की तरफ पलट जाए, अपने आप को कमतर बताए, अपने आप को बताए कि नहीं अल्लाह, मेरे से गलत हो गया, मैंने बहुत गुनहगार हूं अल्लाह, मेरे से ही ये गुनाह हो गया अल्लाह, मुझे माफ कर दे अल्लाह, मैंने जुल्म कर दिया अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम कर अल्लाह। और क्या करेंगे बहनों, अल्लाह की तरफ पलट जाएंगे। हमको शैतान के जैसे नहीं बनना है, जिसने जस्टिफाई किया, जिसने अपने गुनाह को गुनाह नहीं माना, उल्टा उसने क्या किया बहनों, उसने कहा खुद भी डूबूंगा, सबको लेके डूबूंगा। वैसा नहीं होना है बहनों। ओके, इंशाल्लाह। फिर जब अल्लाह ने देखा कि वाकई में इनके अंदर नदामत है, वाकई में ये लोग के अंदर जो है वो क्या है कि इनके अंदर गिल्टी फीलिंग है, हाँ, ये अपने गुनाहों को मान लिए, हाँ, झुक गए, तो अल्लाह ताला ने भी क्या किया बहनों, इनको माफ कर दिया। और माफ करने के बाद क्या कहा, अल्लाह ने कहा कि उतर जाओ, तुम्हारे बाज बाज के लिए दुश्मन है। अब यहाँ पर याद रखना बहनों, अल्लाह ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। मैं यहाँ पर ये क्यों बता रही हूँ ना बहनों, क्योंकि बहुत सारे जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि इंसान जो है वो बॉर्न सिनर है, वो पैदाइशी गुनहगार है, और उसको है ना, उसके जो है वो गुनाह की वजह से उसको दुनिया में भेजा गया, और ये जो भी हार्डशिप्स हो रहे, जो भी यहाँ पे जो मुसीबत आ रही है वो उस वजह से आ रही है। नहीं बहनों, यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने माफ कर दिया। माफ करने के बाद कहा कि तुम दोनों क्या हो जाओ, तुम उतर जाओ जमीन पर, दुनिया में चले जाओ, तुम्हारे बाज बाज के क्या हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो सेगा आ रहा है, कुम का आ रहा है, यहाँ पे ड्वेल नहीं आ रहा है, दो का सेगा नहीं आ रहा है, प्लॉरल आ रहा है, जमा का आ रहा है। क्यों, क्योंकि सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम या हव्वा अलैहिस्सलाम नहीं उतरे, बल्कि जो इब्लीस था, जो जिन्नात में से था, वो भी वहां पे उतर गया। और इंसान इंसान का दुश्मन है, इंसान जिन्नात का दुश्मन है, जिन्नात और इंसान जो है इब्लीस का दुश्मन है। तो आपस में ये दुश्मनी, ये नफरत है, ये सब होती चले जाएगी। जन्नत में अमन था, मोहब्बत थी, सुकून था, राहत था, सब था,
है ना। मगर देखो बहनों, एक इंसान जब नाफरमानी कर लेता है, कोई भी लग्जिश हो जाता है, तो वो नेमतें हट जाती है। उसी तरह बहनों हम भी याद रखें कि हमसे कोई गुनाह ना हो, अगर हमसे भी कुछ होगा तो नेमतें हट जाती है। फौरन हम क्या करें, तौबा तिल्ला कर ले। ओके। और फिर क्या कहा कि तुम्हारे लिए जमीन में क्या है, क्या है, एक ठिकाना है, एक आरजी ठिकाना है, एक टेम्परेरी तुम्हारे लिए क्या है, एक ड्वेलिंग प्लेस, एक डेस्टिनेशन है, और एक मता है, एक फायदा है, एक नफा है, थोड़े वक्त के लिए। हम लोग जो दुनिया में आए हैं बहनों, यहाँ पर जो है वो क्या है, जरे वक्त के लिए आए हैं, एक टेम्परेरी बेसिस पर आए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो बहनों, हमको ये सब बातें याद रखना है। देखो अगर कोई हमको कहता है कि तुमको 4 घंटे, हाँ, अगर कोई बंदा हमको कहता है कि एक बस में तुमको ट्रैवल करना है 4 घंटे, और उसके बाद जब तुम पहुंच जाओगे वहां पे, मैं तुमको, तुम्हारे घर वालों को, सबको हमेशा हमेशा का जॉब दे दूंगा, पैलेस दे दूंगा, घर दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, हाँ, मगर तुमको जो सफर करके आना है वो जगह तक, वो 4 घंटे का होगा, और वहां पे सीट नहीं मिलेगी, खड़े होके सफर करना पड़ेगा, यहाँ से धक्के, वहां से धक्के, वहां से गाली, वहां से लाते जूते सब पड़ेंगे, मगर सिर्फ 4 घंटे का सफर है, उसके बाद हमेशा हमेशा का आराम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4 घंटे नहीं, 14 घंटे का सफर ही सही, तू मुझे सिर्फ बोल कहाँ आना है, मैं और मेरी फैमिली जो है वो खड़े होकर आ जाएंगे। 4 घंटे ना, हाँ चलेगा भाई, 4 घंटे खड़े होकर आ जाएंगे, मगर हमको वो हमेशा की जन्नत चाहिए, हमेशा का वो ठिकाना चाहिए, है ना। उसी तरह बहनों, ये 4 दिन की जिंदगी है, हमको भी क्या करना है बहनों, यहाँ पर लाते जूते धक्के सब मिलते रहेंगे, है ना, मुसीबत पे मुसीबत, और टेस्ट पे टेस्ट आएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई दिल तोड़ेगा, कोई मारेगा, कोई कुछ भी कुछ होगा बहनों, पर हमको क्या करना है, अल्लाह के लिए सह जाना है। ओके। और फिर हमको क्या मिलेगी बहनों, अगर ख्वाहिशात के ऊपर एक पैर रहेगा तो दूसरा पैर कहाँ जाएगा, हाँ, जन्नत में। बोलते ना, 2 कदम पर जन्नत है, एक कदम ख्वाहिशात के ऊपर रख लो, और दूसरा कदम कहाँ रख लो, जन्नत में चले जाओ। तो हमको बहनों हमेशा क्या करना है, इस बात को याद रखना है। शैतान के अंदर क्या था, हसद था, खुद तो डूबूंगा, दूसरों को भी लेकर डूबूंगा, है ना, वो हमेशा आता रहेगा, बस फसे डालता रहेगा। हमको उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है बहनों, हमको क्या करना है, बचना है। वो गुनाह को कैसे लाएगा पता है, खूबसूरत तौर पे लाएगा। म्यूजिक कितना अट्रैक्टिव है बहनों, जरा सा म्यूजिक मैं भी सुनती हूँ, इतना मजा आता है, इतनी खुशी मिलती, मन करता है बस सुनते रहो, ये नाचते रहो, गाते रहो, है ना। खूबसूरत है बहनों गुनाह, बेहयाई करो, बहुत मजा आता है, फैशन के कपड़े पहनो, बाल खुले रखो, सेल्फी लो, वीडियो लो, मजा आता है। तो वो तो गुनाह को मुज़य्यन करके बताएगा बहनों। तो याद रखना, गुनाह कैसे रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, और मुज़य्यन करके लाएगा बहनों। हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। और नेकियां मुश्किल लगेगी, वजू करो, जाके नींद से उठो, बाथरूम जाओ, बार बार पेशाब को जाओ, वजू करो, मुश्किल लगता है। रोजा रखो, नमाज पढ़ो, मुश्किल लगता है। और नमाज के अंदर भी वो हमारे ध्यान को बहकाने की कोशिश करता है ना। तो याद रखना बहनों, ये सब शैतान के बारे में जान के रखेंगे हम लोग, और वो क्या करता है, हमारे अमल को बेकार करना चाहता है। हम लोग जो नेकियां कमाते भी है ना बहनों, समझो मैं नमाज पढ़ ली, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मैं रोजे रख रही हूँ, वो अभी आएगा, क्यों आएगा पता है, वो क्या चाहेगा कि मेरे वो अमाल जाया हो जाए। समझ में आ रहा है, अब वो क्या बोलेगा, चलना। अब कितने लोग बहनों घरों में बैठे, बहुत सिंसियर, मतलब उतना बहुत ही बुजुर्ग लोग हमारे घर में, दादा दादी नाना नानी बैठे हैं, और वो लोग क्या करते, 5 टाइम की नमाज पढ़ते, जिक्र करते, कुरान पढ़ते, इतने अच्छे लोग हैं, मगर फिर बोलते सब हो गया, अब क्या करें, चलो भाई अपना सीरियल देखो, चलो भाई पिक्चर देखो, क्या करूं पूरा दिन, क्या करूं। फिर वो लोग क्या करते, पिक्चर देखते, या तो फिर बैठ के गीबतें करते, है ना। और वो जितना भी वो लोग दिन भर का कमाया था, वो पूरा क्या करते, जाया कर देते। हमारे बूढ़े लोग भी बैठ के बोलते, मेरी सास ऐसा करी, मेरा फला उसने ऐसा किया, यहाँ वहां की गीबत, यहाँ वहां की बातें करके पूरा जाया हो गया, जो तुमने सब्र किए, बर्दाश्त किए थे वो जमाने में, वो पूरी मेहनत क्या कर देता है, जाया कर देता है।
समझ में आ रहा है बहनों? तो शैतान क्या चाहता है कि हमारा जो बकेट है, जो नेकियां हमने कमाए हैं पूरा दिन, उसके नीचे वो खड्डा बना देता है, जिससे हमारे पूरे नेकियां क्या हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं। ये शैतान हमसे रोजाना करवा रहा है। उसकी प्लानिंग को समझो बहनों। हलाल एंटरटेनमेंट है, नमाज हो गया, सब इबादत हो गई। अभी पूरा टाइम तो नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं भी क्या करती हूँ, यूट्यूब पे जाती हूँ और कुछ ऐसा देखती हूँ जिसमें मेरा को गुनाह ना मिले, और मेरा मेरा जो बोलते ना ब्रेन है वो भी रिलैक्स हो। जैसे कुछ जैसे कि मैं बताती हूँ, कुकिंग शो देख लो। मुझे न्यूज का बहुत शौक है, दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर बाहर गांव में क्या हो रहा है, मैं सबकी न्यूज देखती हूँ। या तो फिर हम लोग कुछ ऐसा देखे बहनों, कोई कॉमेडी जहाँ पे जो रियल लाइफ के वीडियोस होते हैं, जिसको देखकर हंसी आ जाती, कोई गिर जाता है ना, कोई फिसल जाता है। कुछ ऐसे वीडियोस बहनों जो गुनाह नहीं होते, जो कि बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कंटेंट है यूट्यूब में, जो गुनाह नहीं होता है। तो वैसे चीजें देखे ना बहनों, हम क्यों सीरियल और पिक्चर और ड्रामाज और कुछ ऐसा कुछ देखे जो दिन भर की कमाई हमने कमाए वो पूरा जाया कर दे। सहेली से बात करो, रिश्तेदारों से बात करो, मना नहीं है, पर हम लोग बात करते करते गीबत कर लेते, किसी के लिए हसद कर लेते, फिर क्या होता है, बहुत कुछ जाया जाता है। यस, डॉक्यूमेंट्री ऑफ नेचर देख सकते हैं। मैं खुद है ना, स्टार्स के बारे में देखना बहुत पसंद है कि प्लैनेट्स में क्या हो रहा है, कौन सा प्लैनेट क्या हो रहा है, आजकल जो बहुत सारे गैलेक्सीज डिस्कवर हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। इसमें आपकी जो पसंद है बहनों, आपको जो चीज पसंद है, कुकिंग पसंद है, टेलरिंग पसंद है, मेहंदी पसंद है, जो भी आपको पसंद है बहनों, आप वैसे चैनल्स को देखें, मगर प्लीज हम गुनाह ना करें। समझ में आ रहा है? वो लंबी लंबी उम्मीदें हमारे अंदर डालेगा, बहुत जिंदगी है, बहुत टाइम है, तौबा कर लेना, बुढ़ापे में हज उम्रा कर लेना, अभी तो दिन है, अभी तो ये है, अभी तो वो है। नहीं बहनों, हमको उसकी बातों में नहीं आना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक जो है अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारा एक वक्त है। हम और फिर अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने कहा उसमें तुम क्या करोगे, उसमें ही तुम जियोगे, दुनिया में तुम जियोगे, और वहीं पे तुम्हारी क्या होगी, तुम वहीं पर मरोगे। काश यहाँ तक बात खत्म हो जाती। हाँ, अगर यहीं तक बात खत्म हो जाती बहनों तो कोई टेंशन नहीं होता। पर अल्लाह ने उसके बाद क्या कहा कि उसी में से फिर तुमको निकाला जाएगा। यही वो बात है जिससे डर महसूस होता है ना। अब अल्लाह ताला जो है वो क्या बोल रहा है कि मैं तुमको वहां से निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? ताकि हिसाब हो, है ना, हमारा अकाउंटेबिलिटी हो। हम एक दिन आएगा जहां पर अल्लाह ताला हमारा अकाउंट लेगा, डे ऑफ जजमेंट। तो हमारे ऊपर क्या है बहनों, तलवार लटकी हुई है। अगर बहनों उठाने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ओके, अगर अल्लाह ताला कहता कि जाओ दुनिया में जियो, दुनिया में मरो, हाँ वहीं पर सब कुछ हो जाएगा, तो हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती। अगर उठाने का दिन नहीं होता, हाँ, अगर हिसाब किताब नहीं होता, तो बहनों हम लोग तो क्या अय्याशी करते क्या मनमानी करते, क्या जिंदगी हम लोग जीते, है ना। मगर जब अल्लाह ने कहा कि तुमको यहाँ पर से ही उठाया जाएगा, तो हमको फिर क्या करना है, बहुत ही अलर्ट रहना है ना। डर खौफ की जिंदगी जीना है कि भाई मुझे कल हिसाब देना है, गिन गिन के हिसाब देना है, राइट। शौहर अगर पैसे दे और कहे कि मैं हिसाब नहीं लूंगा, तो मैं तो पहले मेरे घर वालों पे खर्च करूंगी, मेरे खुद के पर्सनल पे खर्च करूंगी, घर पे खर्च ही नहीं करूंगी, क्योंकि शौहर बोल रहा है कि हिसाब ही नहीं लूंगा, जितना चाहिए दे दूंगा। तो हम लोग तो जो चाहे कर सकते। पर यहाँ पर अगर शौहर कहता है कि नहीं हिसाब लूंगा, तो फिर तो मैं बराबर से उसको रखूंगी, बराबर से देख देख के खर्च करूंगी, लिख के रखूंगी, है ना। कल बताऊंगी मेरे शौहर को कि देखो तुम मेरे पे क्या इल्जाम लगा रहे हो, देखो तुम्हारे घर पे खर्च की, तुम्हारे बच्चों पे खर्च की, घर गृहस्थी पे खर्च की, है ना। उसी तरह बहनों अल्लाह ताला हर चीज का क्या लेगा, हिसाब लेगा। ये जो दुनिया की जिंदगी है बहनों, ये दारुल इम्तिहान है। ये क्या है, दारुल इम्तिहान। अगर देखो बहनों, अगर शैतान नहीं उतरता, इब्लीस नहीं उतरता, तो एक अलग बात होती। अल्लाह ने तो कहा कि इब्लीस भी तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन है ना। तो यहाँ पर बट ऑफ कोर्स इट इज नोन कि ये क्या है, दारुल इम्तिहान। यहाँ पे टेस्ट होते चले जाएंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक जो है सब बातें सबको समझ में आई बहनों, सब क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 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 अच्छे से हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह बस
अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है? अब तक सब क्लियर है बहनों? जी सब आए थे? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सब जाग भी रहे ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब गौर से सुन भी रहे ना? ठीक बात है। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो, जब हम लोग ये सब सुन रहे, जान रहे, हाँ, उसके हम लोग इब्लिस के बारे में बात कर रहे, इब्लिस के बारे में पूरा जान रहे, तो इब्लिस की क्या हालत होती रहेगी ना। मजा आ रहा है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेरा खुला हुआ दुश्मन है ना? और दुश्मनी करने में क्या शर्म है ना? अल्लाह ही खुद कह रहा है दुश्मनी करो, उसको छोड़ो मत। तो हमको तो करना है, खुशी से करना है, उसको बहुत उसका जान जलाना है, उसके बारे में ऐसी-ऐसी पोल अल्लाह ताला खोले ना हमारे साथ कि हमको मजा आ जाए, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाते हैं वापस से हमारी आयतों की तरफ, हाँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब अल्लाह तबारक ताला हमसे क्या कह रहे हैं, है ना? यहाँ पर जीना है, यहाँ पर मरना है और यहीं से हमारा उठना भी है ना? तो ज़मीन कितना बड़ा-बड़ा काम कर रही है ना, हमारी कब्र भी यहीं पर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ए बनी आदम, आदम की औलाद, यानी हमसे कहा जा रहा है बहनों, क्या कहा जा रहा है? कि बेशक हमने उतारा तुम पर, क्या उतारा? लिबास को उतारा। अब यहाँ पर लिबास की बात आ रही है। जितनी भी आयत है ना बहनों, ये सब लिबास से कनेक्टेड है। समझ रहे हो बहनों इम्पोर्टेंस ऑफ लिबास? समझ रहे हो कि शैतान का जो मेन स्टार्टिंग का गोल क्या था? हमको बेहया करना। अगर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को भी कहता कि भाई नंगे हो जाओ, कोई नंगे नहीं होते बहनों। समझ में आ रहा है? वो कैसे नंगे करता है? वो कैसा कपड़े आहिस्ता 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 हमको बेहयाई की तरफ लाता है। समझ में आ रहा है बहनों? तो ये हमको समझना है। यहाँ पर अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं, किसके बारे में? लिबास के बारे में। क्या कह रहे हैं? कि ए बनी आदम, बेशक हमने उतारा तुम पर लिबास को। क्यों लिबास को उतारा? ताकि तुम छुपाओ उससे तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स को, तुम्हारी शर्मगाह को, तुम्हारी जरूरत को। उसको क्या करना है? छुपाना है। और ये एक और भी चीज है, क्या है? अडॉर्नमेंट है, जीनत है। याद रखना बहनों, जैसे हम हमारी कमजोरी को छुपाने के लिए, है ना, हमारे शर्मगाह को छुपाने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, वैसे ही बहनों जो हमारी रूहानी कमजोरी है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको छुपाने के लिए हमको तकवे का लिबास पहनना है। जिस्म के लिए कपड़ों का लिबास है, जिस्म के लिए कपड़ों का लिबास है। और रूह का लिबास क्या है बहनों? तकवे का लिबास। समझ में आ रहा है बहनों? याद रखना है। अल्लाह ताला देखो बोल रहे हैं, और लिबास तकवे का ये ज्यादा बेहतर है, तकवे का लिबास ज्यादा बेहतर है। अल्लाह तबारक ताला खुद ही बता रहे कि हमको कौन सा लिबास पहनना है? तकवे का लिबास, अल्लाह के खौफ से लिबास। यानी कि देखो बहनों, आज ये है ही नहीं हमारे अंदर, है ना? हम लोग कैसे कपड़े पहनते, हमारे बच्चे कैसे कपड़े पहनते, ऐसे टाइट कपड़े, ऐसे पतले, ऐसे बारीक, ऐसे दूसरे कल्चर के कपड़े पहनते हैं बहनों। ये कपड़े जो है ना हमारे जहनों पर असर करते हैं बहनों। पाकीज़ा जिंदगी, पाकीज़ा लाइफ के लिए पाकीज़ा कपड़े, अच्छे कपड़े बहुत जरूरत है, जो शरीयत में हो। हमको आदमियों के से कपड़े नहीं पहनना है, और औरतों को आदमियों के से कपड़े नहीं पहनना है, और आदमियों को औरतों के जैसे कपड़े नहीं पहनना है। ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, ना बहुत ज्यादा चीप कपड़े हो। मुझे याद है एक चीप कपड़ा लेकर आई बहनों, वो कपड़ा, उसकी सिलाई पूरी खुल गई, और इतना गंदा क्वालिटी में क्या बताऊं। मतलब अल्लाह का शुक्र है हम लोग बुरखा पहन के जाते हैं। मैं जब बुरखा वहां पे निकाली नहीं, मैंने बुरखा घर में आके निकाली तो देख तो कि पूरी सिलाई खुल गई है यहाँ वहां से। मतलब चीप कपड़े अगर लेने जाओ तो उसका क्या असर होता है। तो ना ज्यादा एक्सपेंसिव ले, ना रास्ते का माल ले, बल्कि मॉडरेट, यानी उसमें भी हम कैसे रहे? दरमियानी रवि से ले, है ना? यानी हमारा जो निसाब है बहनों, हम जैसा कमाते हैं उसके एतबार से हम पहने। ओके। अब जो करोड़ों में कमाता है बहनों, वो लाखों का ड्रेस पहन सकता है, क्योंकि वो करोड़ों में कमाता है। अगर कोई लाखों में ड्रेस पहनता है तो हम लोग उसको अल्लाह देखो कैसा ये वो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई करोड़ों में है।
تو वो पहन सकता है बहनों, समझ में आ रहा है? तो हम किसी के ऊपर उंगली ना उठाए, हमको अपने ऊपर ही नजर रखना है बस। ये ऐसा दौर चल रहा है, हम लोग दूसरों की बच्चों को बोलते हैं, अरे वो देखो ना दुपट्टा नहीं पहनी, वो देखो उसके माँ बाप कैसे दीनदार, उसकी बच्ची को बुरखा नहीं पहनाते। अरे हमको क्या करना है, कौन क्या करता है, अपने गिरेबान में झांको ना, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमको इसका उसका बहुत रहता है, वो नाचती है, वो गाती है, वो ऐसा करती, वो वैसा करती। हमारे बच्चों पे नजर रखो, हमारे बच्चे क्या करते हैं। दूसरों का मत देखो, इस्लाह करना है जाके उसको खुद से बोलो, दूसरों को मत बोलो, है ना। तो हमको बहनों ना ज्यादा एक्सपेंसिव पहनना है, ना चीप कपड़े पहनना है, बल्कि कैसे पहनना है, मॉडरेट पहनना है। और कौन सा लिबास पहनेंगे बहनों, तकवे का लिबास पहनेंगे। ओके, ये भी हम क्या करें, याद रखें, ये दुनिया की जिंदगी परमानेंट नहीं है बहनों, टेम्पररी है। जन्नत में अल्लाह ताला ऐसे लिबास पहनाएगा, ऐसे लिबास पहनाएगा, ना खरीदने का टेंशन, ना जाने का टेंशन, ना सिलाने का टेंशन, ना एम्ब्रॉयडरी का टेंशन। ऐसे कपड़े पहनाएगा बहनों कि हमारा गोश, हमारा खून वो भी दिखेगा बहनों। क्या कपड़े की क्वालिटी होएगी सोचो, 70-70 जोड़े पहने रहेंगे, गर्मी नहीं रहेगी बहनों, मजा आएगा वो कपड़े पहनने में। और ऐसे हल्के रहेंगे, ऐसे ब्यूटीफुल कपड़े रहेंगे कि इतने ट्रांसपेरेंट के हमारा जिस्म भी दिख रहा है। तो सोचो बहनों क्या कपड़े होंगे, यहाँ पे छुपा ले, वहां पे सब होगा इंशाल्लाह, है ना। गोश भी दिख रहा है ना। तो बहनों यहाँ पर जो 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन तो गुजर गए बहनों, है ना। 4 दिन की जिंदगी में 2 दिन तो गुजर गए, 2 दिन की जिंदगी में कंट्रोल करके जिएंगे इंशाल्लाह। ओके, और ये जो आयतें हैं, ये आयतें किसकी है, अल्लाह की है। ये अल्लाह तबारक ताला हमको बता रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं ना। तो ये जो आयतें हैं वो अल्लाह की आयतें हैं, ताकि वो जो है वो क्या करे, रिमेम्बर करे, नसीहत हासिल करे। अब देखो बहनों, ये चीज हमको याद रखना है, बार बार क्यों कपड़ों के बारे में आ रहा है। तो एक चीज यहाँ पर याद रखिए, जो मक्के के लोग थे वो कहीं ना कहीं, हाँ, वो कहीं ना कहीं ये चीज से बहुत दूर थे बहनों। काबा में जो है लोग नंगे तवाफ करते थे, काबा में लोग नंगे तवाफ करते थे। उनको लगता था जैसे हम पैदा हुए वैसे ही हम तवाफ करेंगे, सबसे ज्यादा उम्दा तवाफ है। देखो शैतान कैसा बहकाता है, कैसा धोखा मिलाता है। वो बोलता है कि कपड़े में जो तवाफ है वो सबसे बेहतरीन तवाफ नहीं है। जैसा तुम नेचुरली कुदरती पैदा हुए हैं वैसा तुम अगर तवाफ करते हो, सबसे बेस्ट तवाफ है वो। तो जो मर्द लोग थे वो नंगे तवाफ दिन में करते थे, और जो औरतें होती थी वो क्या करती थी, वो नंगी रातों में तवाफ करती थी। समझ में आ रहा है बहनों, नाउजुबिल्ला, ऐसा दौर चल रहा था। तो यहाँ पर जो है वो शैतान ने उनको क्या किया, उनको ऐसा बहका दिया। तो अल्लाह ताला वही बता रहे कि लिबास जो है वो बहुत जरूरी है, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने, तुम्हारे जीनत के लिए। और बेस्ट लिबास क्या है, तकवे का। और देखो फिर बाद में आयतें आ रही है कि ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, नहीं फितने में डाले, नहीं धोखे में डाले, नहीं सेड्यूस करे तुम्हें शैतान, जैसे कि उसने निकाल दिया तुम्हारे बाप दादाओं को जन्नत से। तुम्हारे हमारे जो दादा दादी थे, है ना, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उसने जन्नत से निकाल दिया, है ना। कैसे निकाल दिया, उसने उतार दिया उन दोनों से उनका लिबास, है ना। उनके पूरे लिबास जो थे वो उतर गए, और एक्सपोज कर दिया उसने, खुला कर दिया, जाहिर कर दिया उनके प्राइवेट पार्ट्स को। तो ऐसे धोखे में हमको नहीं आना है। देखो अल्लाह ताला बार 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 ये बात बता रहा है कि जैसे उसने हमारे बाप दादाओं को धोखा दिया, जैसे उनके उनके चीजों को जो एक्सपोज कर दिया प्राइवेट पार्ट्स को, वैसे धोखे में तुम नहीं आना। यानी कि हमको उसके बातों में नहीं आना है बहनों। अगर आज कोई टोपी के बगैर नमाज पढ़ता है तो उसको बोलते हैं, उसके सर पे जाके टोपी पिना डालते हैं कि नहीं भाई टोपी के बगैर नमाज मत पढ़ो। मगर आज कोई भी, है ना, कोई भी ऐसा बुजुर्ग अगर नंगा अगर वो बैठा रहेगा तो लोग उसको वली अल्लाह बोल के आके उसके सामने बैठ जाते। जो नंगा हो गया बाबा, नंगा बाबा, इसे बहुत आपने सुने होंगे। अरे वो बुजुर्ग वो तो ऐसा पहुंच गए हैं, कपड़े ही नहीं पहनते, और उसके सामने आके बहनों इतने बड़े बड़े लोग आके झुक के बैठ जाते। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस भी जाते हैं बहनों ऐसे लोग के पास, और वजीफे मांगते हैं, उनको अपनी अपना दुख दर्द बताते हैं, और है ना,
आकर वहां पे जो है अपने गम बताते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारी गमों को दूर करो। सोचो बहनों, ऐसा दौर चल रहा है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। जितना नंगे हो रहे उतना ही उनके लिए बुरा है। मॉडर्निज्म नहीं है ये, बहुत ही उनके लिए क्या है, बुरा है। बेशक वो कौन, शैतान, वो देखता है तुम्हें, वो और उसका पूरा कबीला, यानी कि वो सब हमको देख सकते हैं बहनों। समझ में आ रहा है? वो शैतान और उसका कबीला वो हमको देख सकता है, जहां से, यानी कि जहां से भी वो रहेगा वो हमको देख सकता है, और नहीं तुम देख सकते हो उसको। यानी कि जैसे कि कोरोना था बहनों, मैंने कहा ना कोरोना वायरस आया था, उसको हम देख नहीं सकते, मगर हमारा बिलीफ था, है ना, कि हाँ वो वायरस फैला हुआ है। और हम सब ने एहतियात करे, हम सब ने ग्लव्स पहने, हम सब ने मास्क पहने, हम सब ने वैक्सीन लिए, हम सब ने सोशल डिस्टेंसिंग किए, हम सब ने सैनिटाइजर यूज किए, है ना, हम सब ने सब किए। उसी तरह बहनों ये शैतान भी नहीं दिखता। अल्लाह ने दावा किया कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, वो खुद तो डूबा है, तुमको भी लेकर डूबेगा। तो हमको भी क्या करना है, प्रिकॉशन करना है। उसकी क्या चाल है, वो कैसे मुझे बहका सकता है, ये सब मुझे क्या करना है, जानना है, परखना है, और अपनी क्या करना है, हिफाजत करना है। ओके। और बेशक हमने डाल दिया है शैतान, यानी कि अल्लाह ताला उसके बारे में हमको मजीद बता रहे हैं कि बेशक हमने बनाया है शैतान को औलिया, फ्रेंड्स, किन लोगों का, उन लोगों का जो नहीं मानते, नहीं ईमान लाते। ये जो शैतान है वो किसका फ्रेंड बनेगा, उन लोगों का फ्रेंड बनेगा जो ये बातों को नहीं मानते, जो ये बातों पर नहीं बिलीव करते। ऐसे लोग जो इन आयतों को नहीं मानते, नहीं चलते, नहीं सुनते, नहीं अमल करते, तो शैतान भी उनका क्या हो जाता है, फ्रेंड हो जाता है। अल्लाह ताला कितने प्यार से, कितने अच्छे से हमको हमारे दुश्मन के बारे में सब बता रहे कि देखो इसके फ्रेंड्स कौन है, कौन है जो उसको, उस, जो अल्लाह की बातों को नहीं मानते, हाँ वो फिर क्या हो जाते हैं, उसके फ्रेंड्स हो जाते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं, और जब वो करते हैं फहश काम, तो वो कहते हैं हमने पाया है उस पर हमारे बाप दादाओं को, और अल्लाह ताला हुक्म देता है इसका। ये देखो नाउजबिल्ला, मैंने कहा ना वो नंगे तवाफ करते थे, नंगापन उनके अंदर था, गलत गलत कामें वो लोग करते थे। तो जब उनसे पूछा जाता था कि भाई ये फहश काम ये लोग करते हैं, क्यों करते, क्या करते, तो ये लोग क्या बोलते थे कि जब वो करते थे फहश कामों को, तो वो क्या बोलते थे कि हमने पाया इस पर हमारे बाप दादाओं को, आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं थे। उल्टा वो लोग क्या कर रहे थे, पत्तों से अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपा रहे थे, है ना। उन्होंने कभी बेहयाई नहीं की। ये किसने करवाया उनसे, शैतान ने करवाया। और उल्टा ये लोग क्या बोल रहे हैं, अल्लाह पर ही झूठ बांध रहे। वो लोग बोल रहे हैं अल्लाह ने इसका हुक्म दिया, नाउजुबिल्ला। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कह दो बेशक अल्लाह ताला जो है वो कभी हुक्म नहीं देता फहश का, वो कभी बेहयाई का हुक्म नहीं देता, कभी भी बेहयाई का हुक्म नहीं देता। और क्यों, और क्या तुम कहते हो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते। यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या क्या, यानी कि वो लोग क्या करते थे, वो ऐसी बातें कहते थे अल्लाह पर जो उनको इल्म ही नहीं था, जो उनको नॉलेज ही नहीं था। दे वर टॉकिंग विदाउट नॉलेज। ये आज भी हो रहा है बहनों, ऐसे ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस को यहाँ वहां डालते हैं, ऐसे वजीफे, ऐसी कुरान की आयत बोलते ये पढ़ो तुम्हारे बच्चे का जॉब लग जाएगा, ये अल्लाह के नाम का जिक्र करो, कर्जा कर्जा दूर हो जाएगा, लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगी। यानी कि वो लोग क्या चीज को लाते हैं, अल्लाह की आयत, हाँ अल्लाह की आयत, अल्लाह का ही अस्माउल हुस्ना। पर याद रखना है बहनों, ये सब जो अगर अगर हदीस से साबित नहीं है, अगर कुरान से साबित नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा, और ये सब जो बिना नॉलेज के करते हैं, ये किसके काम है, शैतानी काम है। समझ में आ रहा है बहनों, ये सब किसकी चाल है, शैतान की चालों में से चाल है कि तुम अल्लाह के बारे में वो बोलो जो तुम नहीं जानते। ऐसे ही चीजें फॉरवर्ड होती है व्हाट्सएप में बहनों, तहकीक करे, पूछे सही है कि नहीं, और फिर ही उसको फॉरवर्ड करे। हम कोई भी बात पे मान लेते हैं, अगर बताएंगे ना कि ये पढ़ो इतने दिन इतने बाद तुम माला माल हो जाएंगे, मैं तो किसी से पूछूंगी भी नहीं, मैं करने लग जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम सुनते हैं माला माल हो जाएंगे,
करेंगे, हम लोग को तो ऐसा है कि हाँ भाई बस पैसा ही होना चाहिए, है ना? तो याद रखना है बहनों, कुछ भी अमल खुद से ना करे, कोई भी अमल पूछ-पूछ कर करे, इंशाअल्लाह। यहीं तक हमारी आयतें थी बहनों। तो अल्लाह ने कभी फ़हश का हुक्म नहीं दिया, हमारे बाप-दादाओं ने कभी ऐसा काम नहीं करे, ना ही अल्लाह ने कभी इसी का हुक्म दिया। और जो शैतान है और जो शैतान के फॉलोवर्स हैं, वो अल्लाह के नाम पर कहकर झूठ बोलते हैं और ऐसा काम हमको नहीं करना है। वेरीफाई एंड देन स्प्रेड। अभी एआई का ज़माना है बहनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है ना? चैट जीपीटी यानी ऐसा ज़माना चल रहा है कि हमको कुछ भी कोई भी भेजेगा और फॉरवर्ड करने बोलेगा, हम नहीं करेंगे, स्टेटस पे नहीं डालेंगे। समझ में आ रहा है? भले वो लूत अलैहिस्सलाम के बारे में यानी कि कुछ ऐसे-ऐसे स्केलेटन्स भेजते हैं बहनों और बोलते हैं कि वो ज़माने का स्केलेटन मिल गया। देखो वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का स्टैच्यू है, पता नहीं क्या है, वो है, ये है। बहनों ये सब चीज़ों को पहले तहकीक करें, सही है कि नहीं है और फिर ही उस पे बिलीव करें और फिर ही फॉरवर्ड करें। वरना हर सुनी-सुनाई बात सही नहीं होती बहनों, समझ में आ रहा है? हम लोग बोलते हैं कि नहीं ना कुरान की ना आयत है, अल्लाह ही का तो नाम है। क्या हो गया कर लिए तो, क्या हो गया पढ़ लिए तो, नहीं बहनों, हमको ये सब चीज़ से क्या करना है, दूर रहना है। अल्लाह तबारक ताला हम सबकी हिफाज़त करे। आमीन, आमीन, आमीन। जितने भी अच्छी बातें थी ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से थी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको बाअमल बनाए, हमारे अंदर हया भर दे। या अल्लाह हमारे अंदर हया भर दे। या अल्लाह बेहयाई से बचा। या अल्लाह फ़हश बातों से, फ़हश कामों से, फ़हश चीज़ों से, या अल्लाह फ़हश लिबासों से हमारी हिफाज़त कर। या अल्लाह आज तो हमारे बुरखे बुरखे ही नहीं है बहनों। अल्लाह हमारे बुरखे या अल्लाह वो तो और रिवीलिंग होता है और टाइट होता है और अल्लाह बेल्ट भी पहना जाता है। या अल्लाह हमारी हिफाज़त कर। या अल्लाह हमारे बुरखे अट्रैक्टिव ना हो, हमारे बुरखे जो है वो हमारे जिस्म को छुपाए। अल्लाह हम कोई नामहरम के करीब भी ना जाए। अल्लाह हमारी हिफाज़त कर। या अल्लाह ये फितनों का दौर चल रहा है। या अल्लाह तू शैतान मरदूर से हमारी हिफाज़त कर। या अल्लाह वो हमारा खुला हुआ दुश्मन है। या अल्लाह तू उससे हमारी हिफाज़त कर। उसको हमारे से दूर कर दे। या अल्लाह हम उसकी वसवसों में कभी ना आए। अल्लाह तू हमारी हिफाज़त कर। या अल्लाह हमको बाअमल वाला बना दे। या अल्लाह जो भी गलती कोताही थी या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर। और या अल्लाह बहनें आप भी मुझे माफ़ कर दे। या अल्लाह म्यूज़िक से अल्लाह हमारी हिफाज़त कर, बेहयाई से अल्लाह हमारी हिफाज़त कर। या अल्लाह ये गिज़ा हम शैतान को कभी ना पहुँचाए या अल्लाह। या अल्लाह हमारी इस दुश्मन से हिफाज़त कर। आमीन, आमीन, आमीन। र रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व कीना अज़ाबन्नार। बहनों जो झूठ बोलता है वो खुदा नहीं हो सकता और खुदा वो है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। जो ये लोग दावा करते हैं ना शैतान का, तो याद रखना ये झूठा है, ये धोखेबाज है। दज्जाल को भी ये लोग क्या बोलते हैं, वो अपने उस इलाह का वेट कर रहे हैं ना, बोलते हैं ना हमारा गॉड आ रहा है, हमारा मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है। वो एक नंबर का झूठा और फ्रॉड होने वाला है ना? तो याद रखें बहनों कि हमारे अल्लाह के वादे क्या है, सच्चे हैं। हमारे अल्लाह ने जो भी वादा किया है वो सच्चा है और सच होकर ही रहेगा। और जो शैतान है उसके सब वादे झूठे हैं, धोखेबाज है बहनों। और उस वो कल खुद ही बोलेगा अल्लाह के सामने कि या अल्लाह मैं क्या हूँ, इनोसेंट हूँ, मैं क्या हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने सिर्फ इनको क्या किया, वसवसे डाला, झूठी कस्में खाया, झूठे वादे किया, मगर तेरे बंदे ही मेरे जाल में फंसे। वो खुद ही बोल देगा बहनों। और हमको उसके जाल में नहीं फंसना है। अल्लाह हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। आमीन, आमीन, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।